Good morning, Chanchal. Nevia, good morning. Dimple, good morning. Akansha, good morning. Am I audible to each one of you? Am I audible? Okay, fine. So, this is our session for the Minimum Wages Act, Part 1, Lesson 1. Okay, so let me just upload the file. Is this slide visible? Rohini, good morning and welcome to the class. Is this slide visible? So, we are doing the Minimum Wages Act. I hope the slide is visible and each one have joined the class. We would be doing the Minimum Wages Act, which is the important law and it is a part of the syllabus. Now, let's understand what do you mean by minimum wages? Why this law came into the existence? What were the purpose? Well, minimum wages, the term minimum, you should associate the term minimum which is directly related to the survival of a person. Rather, I won't say only the survival plus basic standard of the person. So minimum wages means those wages which are necessary for living a normal life for me as an individual or as a worker and for his family. So Minimum Wages Act 1948, why this law came into the existence? What was the purpose? इस law को क्यों बनाया गया? What were the purpose behind it? And what objectives are fulfilled by this law? First thing, the Minimum Wages Act comes under the preventive. We have different forms. Okay, preventive legislation. We have 4 types of the laws: preventive, regulative. This preventive, or rather this is also called as protective. Okay, protective. So we have protective or preventive, regulative, welfare and your social securities law. Minimum Wages Act is a part of protective or preventive legislation and it is also called as the wage legislation. A category, a separate category where it's talk about the wages. Wage legislation. Clear? Now, why this Minimum Wages Act 1948 came into the existence? You can see just after the independence, 1947, 1948, this law came into the existence. An interesting thing is, before this minimum wages came into the existence, the Payment of Wages Act came into the existence, 1936. Now, 19th century, when exploitation was at the peak, industrialization was at the peak, exploitation was at the peak. Now, what is this exploitation? The industries in India were a sweated industries. What do you mean by sweated industries? Those industries where workers, laborers were working for long hours without any facilities, without any proper wages, without any bare minimum existence or survival facilities. They were working in the hazardous situation for the long hours without any minimum wages, without any surety whether they would be getting these salaries on time or not. And over and above this, their working condition were hazardous and not safe. As a result, over the time, when the revolution
happened, when agitation happened, when the laborers, when the leaders started protesting, the Minimum Wages Act 1948 came into the existence. The Payment of Wages Act 1936, which was long back under the British rule, came into the existence. The purpose of this Payment of Wages Act was to make sure that employees or the workers are getting their salaries on time without any unnecessary deductions. So to prevent the workers from the arbitrary decisions, one-sided decision of the employer, prevent them from the exploitation, right, from exploitation, and give them salary on time without unnecessary deduction, the Payment of Wages Act came into existence. But what happened? Though this law was in existence, there was no minimum wages which were guaranteed, which were made assured, it was the minimum wages under which an obligation was created on the employer that you are supposed to give the wages which are not below the minimum wages, which are fixed by the appropriate government. So you as an industry are not able to even provide the bare minimum wages to the employees, then your existence as an industry also is of no use. So this law made it responsible, gave an obligation to the employer that you are supposed to give the wages not only on the time but also at one minimum wages level, which is decided by the appropriate government. And this law also gave a responsibility to the appropriate government that after regular interval you need to revise this minimum wages. Why? Because of the cost of living. Today, anything which I am purchasing at 5 rupees, not necessarily it would be available at the same price after 5 years. So it is the responsibility of the appropriate government not only to fix the wages but also revise it regularly, so that the cost of living of the workers is maintained. They are able to survive in any kind of the economic situation, fall, up growth which is happening in the country. So Minimum Wages Act has two main objectives: fixation and revision of the minimum wages, which puts an obligation on an employer to maintain at least a minimum wages or provide the minimum wages to the employees as per fixed, as defined or fixed by the appropriate government, who is responsible for two things. Am I clear? What do you mean by minimum wages? समझ में आ गया? Who is the first time attending this session? समझ में आया मिनिमम वेजेस का मतलब? मिनिमम वेजेस यानी वो वेजेस जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेगी हर एक स्टेट के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए, कि भाई आप अपने इधर काम करने वाले एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, इस लेवल के नीचे नहीं देंगे. अगर किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 12,000 पर महीना सिलेक्ट किया है तो या डिसाइड किया तो आप 12,000 रुपए देंगे, उससे ज्यादा दे सकते हैं, आपकी खुशी, आप एम्प्लॉयर हो, लेकिन उसके नीचे नहीं जाएंगे. और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये एक ऑफेंस है, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. एम आई क्लियर? रोहिणी इज योर फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. एनीवन एल्स हुज फर्स्ट क्लास? The students, those who are first time attending my sessions, I would request you to attend the live classes for the better understanding. Yes, of course, there are the recorded classes which are available, but since you are the first timer, your doubts would be more. You are the one who would be asking me more doubts. So it's very important for you. Nivya, you are also the first timer, right? So make sure that you do the live classes. Coming to the strategy and all, how you have to study, what you have to study, just follow the classes and the syllabus. Okay? Now, let's move to the law, the Minimum Wages Act 1948. So 1948 was the year when the law became enforceable. But before this law,
So, or whether this was the year which actually it was passed and it came into enforcement, 1948. But the law was put forward before, or the question related to the minimum wages was raised into the parliament, or rather at that point of the time the conferences was held, an Indian Labour Conference and Standing Labour Committee where the national level tripartite bodies which used to or supposed to deal with such labor questions. So for the first time, the question of who will be fixing this minimum wages and what would be the way of fixing the minimum wages, how the revision would be done, this was put forward before the Indian Labour Conference in 1943 in the fifth session. Which session? Fifth session. Then later, Government of India introduced this bill in 1946 in the parliament, and by the approvals or by the agreement of Lok Sabha and Rajya Sabha, the law was passed on 9th February 1948. The law came into the enforcement on 15th March of 1948. Enactment is different, enforcement is different. Enactment is when it was passed, when Parliament agreed that yes, we are going to apply this law. Enforcement is the law which has been passed now is applicable on the industries. So it was enforced on 15th March 1948. Usually this year is asked in exam. However, over the time there has been number of the amendment. समय के साथ में जैसी उसकी requirement रही है उसमें amendments होते रहे हैं. So now, as I told you, this law provided two main or important thing: fixation of the minimum wages by the provisional government. Provisional government here means the state governments or the appropriate government, and also revision of the salaries, minimum wages over the period of time. And for doing so and advising the government on the same, this law came up with a provision of appointing the advisory committee both at the state and the central level, whose work was to coordinate the work. क्या काम था उनका? कोऑर्डिनेट करना, एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि क्या मिनिमम वेजेस होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के वर्कर्स के लिए. ऑल दोस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर लॉ. क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? एम आई क्लियर? आई एम मूविंग वेरी स्लो. आई कैन फिनिश अप द मिनिमम वेजेस एक्ट विद इन 2 classes, but to make you understand I am making very slow and very basic. Now see, any of the law in India which come into the existence also has a relation with uniformity at international level. जो भी laws इंडिया में आते हैं ना उसका हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है. एंड द body which maintain this uniformity all over the world for the countries who are the part of ILO is International Labour Organization. तो ये वो बॉडी है जो लेबर से रिलेटेड स्टैंडर्ड मेंटेन करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी इसके पार्ट है. India has been a founding member of ILO. It is a founding member of ILO which was formed in 1919, and in 1922 India got the permanent body in its governing. So there are 3 bodies of ILO. Governing body, which is an executory body of the ILO. India became a permanent body, India became a permanent part of governing body in 1922. Now, since India itself is a part of this ILO, it becomes a responsibility of India to make sure it is 100% following the international standard. So, India have adapted and ratified number of ILO conventions. One among them is related to minimum wages. Now, what are this convention? International Labour Organization is a body which came into the existence with the purpose of maintaining the
social justice and peace all over the world after the World War. There was a World War, लड़ाई हो गई थी, हर जगह पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो इंडस्ट्रीज, कंट्रीज वेर ऑल ओवर, दे वेर फाइटिंग, एंड दिस लेड टू द वर्ल्ड वॉर. The World War, when it came to silence, big countries realized that this is not going to work. ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे, वर्ल्ड वॉर होते ही रहेंगे. Then came ILO. ILO was the organization which was formed with an objective to maintain, bring that labor standard in all over the world or all over those countries, in order to maintain social justice and peace. And ILO believed this is not possible without involving the employees. तो ILO क्या है? एक ट्राइपोर्टाइट बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर ट्राइपोर्टाइट है, जहां पे एम्प्लॉइज के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉयर के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नमेंट के भी. तो ये तीनों लोग आपस में आके लेबर से रिलेटेड इश्यूज को समझते हैं, परखते हैं, रिसर्च करते हैं और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस लेकर आते हैं. बट ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे होते हैं. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू, यू कैन से, हैंडल्स और टू इंस्ट्रूमेंट्स टू डू द सेम. जो इनके जो स्टैंडर्ड ये बनाते हैं, दो तरीके से बनाते हैं. एक जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन और दूसरा है रिकमेंडेशन. कन्वेंशन वो होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं कि अगर किसी कंट्री ने इसको रेटिफाई कर लिया तो आपको तो इसके प्रोविजंस अपने लॉ में लाने ही पड़ेंगे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. रिकमेंडेशंस कई बार कन्वेंशन से ही एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन कई बार ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. ये क्या होते हैं? ये एक तरीके की गाइडलाइन होते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते. अगर आप रिकमेंडेशन को रेटिफाई करते हैं, इसका मतलब आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है, आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है. सो नाउ इंडिया हैज adapted India has ratified number of conventions जो कि अलग अलग लेबर इश्यूज पे है. ILO in its first 1919 में ही जब ये बना था, it have adapted a convention and recommendation to the minimum wage fixing machinery. इन्होंने एक कन्वेंशन को अडाप्ट किया, बनाया कि मिनिमम वेजेस के लिए एक फिक्सिंग मशीनरी होनी चाहिए. और ये प्रोविजन कहां दिया है, कौन से कन्वेंशन में दिया है? द मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन नंबर 26 adopted in 1928 which provide the creation of machinery. India have ratified this minimum wage fixing machinery convention in 1920 convention number 26 in 1955. कब रेटिफाई किया? 1955 में. तो जब लॉ आ गया 1948 के अंदर में, ठीक है, उसके पहले से एक्चुअली ये सारी चीजें बातें हो रही थी कि हाँ हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना है. जब हमने लॉ ले आए, प्रोविजंस को अप्लाई कर लिया, तो हमने इससे भी रेटिफाई कर लिया कि हाँ हम इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं. अदर देन दिस, ये आपको 100% याद रखना है. कौन सा कन्वेंशन है? कन्वेंशन नंबर 26 है. कब रेटिफाई किया इंडिया में? 1955 में. और अडॉप्ट ILO ने कब किया था? 1928 में किया था. ठीक है. अदर देन दिस, ये सारे वो कन्वेंशन है जो ILO के हैं रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस. यहाँ पे इंडिया का अभी कोई कन्वेंशन रेटिफिकेशन की बात नहीं हुई है. जो है वो दूसरा और तीसरा पॉइंट है. सो नाउ वो भी हमारा बैकग्राउंड हो गया. दो बैकग्राउंड हमने देख लिए. अब हम आते हैं बेसिक मिनिमम वेजेस एक्ट पे. सो इन इंडिया द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 is the first labor legislation which is dealing with fixation of minimum rates of wages for the workers employed in different sweated employment including agriculture. तो हमारा एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है. I have already explained you the sweated employment means to work under unhealthy condition for long hours at the low wages. ठीक है, ये हमारा पहला लॉ है जो कि डील करता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस. नाउ
The act provide for fixing the minimum rates of the wages in certain employment. Certain employment क्यों? यहाँ पे एक स्केड्यूल दिया हुआ है, एक ही स्केड्यूल है जिसके अंदर पार्ट ए पार्ट बी है. नॉन एग्रीकल्चर लिस्ट पार्ट ए में है, एग्रीकल्चर वाली पार्ट बी में, सॉरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 1 एंड 2 है. ठीक है, तो यहां पे जो स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट दिए हैं उन्हीं के ऊपर ये मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इसलिए यहां पे कहा गया है सर्टेन एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब क्या हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है जो मिनिमम वेजेस से रिलेटेड है? तो हाँ, आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, सरकार की है, गवर्नमेंट की है, to make sure that they are ensuring decent standard life for the workers and the employees through the proper minimum wages. So the state have to secure a work for the worker, a living wage, conditions of working, ensure decent standard of life, full enjoyment of leisure, social and cultural opportunities. ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 43 में लिखा है. This law is a welfare measure to remove suffering of society, achieve social justice, prescribe minimum wages. It extends to whole India and came into the force on 15th March 1948. Am I clear? Students, what is introductory part of the minimum wages? Article 43 you have to remember. Convention number 26 you have to remember. This law is the first labor legislation. It provides for the machinery for the fixing of the minimum wages. Now, moving to the section number 2, which usually in all the laws talks about the definition. So definition, here we studied the terms which are used in this law. What does it mean? Section 2A define adolescent. Who is adolescent? A person who has completed his 14 years but not completed 18 years. Right? So between the 15 and your 17, or you rather just remember, one who has completed 14 year but not completed 18 year is called as an adolescent. Who is adult? Section 2AA defines adult. Adult is a person who has completed 18 years of age. Now, Section 2B defines appropriate government. What do you mean by appropriate government? Appropriate government is a government whose responsibility is to make sure that these laws are enforced on timely basis. There are the proper rules related to it. Appropriate government's responsibility is to make sure that the provisions are followed. That is the appropriate government. Now, since India is a federal country, it means we have dual government, central government and the state government. So, for those industries where central government is the owner, appropriate government would be central government, and other than those, state government would be the appropriate government. Now the question arises, for Minimum Wages Act, when we are going to say that the central government is appropriate government, it means the central government has the responsibility of enforcement of this law. It is when any scheduled employment, there is one schedule as I told, in that schedule, either part 1 or part 2, either of them, any of the employment, means any of the industries which is under the control of the central government, carried out under the authority of central government, railway administration, mine, oil field or the major port, or any corporation which is established by the central act, but they have to be part of this schedule. So any of them is called, or for them which is under the central government control, the appropriate government would be the central government. Other than that, the state government, also for the scheduled employment only. Any other scheduled employment, the state government. Other than this, for all other places, the state government would be the appropriate government. Am I clear? समझ में आ गया क्या मतलब होता है appropriate government का? Appropriate government की responsibility होती है ये make sure करना
के ये लॉस प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हमारे कंट्री के अंदर में एक एग्जीक्यूटिव पार्ट है। एग्जीक्यूशन पार्ट यानी वो अथॉरिटी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉस प्रॉपरली, रूल्स प्रॉपरली, ऑर्डर्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं है। तो लॉस के केस में ये एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी दी गई है, ये एग्जीक्यूट करते हैं इन लॉस को। ठीक है, आगे चले ना। जैसे कि मैंने आपको स्केड्यूल बताया, पार्ट 1 ये नॉन एग्रीकल्चर है, यहां पे मैंने बहुत लिमिटेड लिखे हैं, आप जाकर चेक करेंगे वेबसाइट पे तो वहां पे लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, तो नॉन, अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि समझिए, जैसे ये ऑयल मिल है, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और अगर कोई दाल मिल है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो यहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। उसी तरीके से अगर कोई डेयरी फार्म है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। और अगर कोई फॉरेस्ट्री या टिम्बरिंग ऑपरेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। एम आई क्लियर? चलो आगे चलते हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। सेक्शन 2BB चाइल्ड, हु इज चाइल्ड? अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स। 14 ईयर्स और 18 के बीच में हम एडोलसेंट कहते हैं, इसके ऊपर अडल्ट है और इनके नीचे हमारी क्या है? चाइल्ड। ठीक है, सेक्शन 2C को याद रखेंगे, कंपिटेंट अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट। हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी? व्हाट इज कंपिटेंट अथॉरिटी? An authority which is appointed by appropriate government by giving a notice in the official gazette. The purpose, मतलब ये अथॉरिटी को अपॉइंट करने का काम किसका है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट करती है। पर्पस टू असर्टन, मतलब टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर टाइम टू टाइम। क्या? टाइम टू टाइम इंडेक्स आइडेंटिफाई करना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट विच आर गिवन इन स्केड्यूल। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है? ये वो नंबर है जो बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, महंगाई कितनी है। कल अगर 10 kg 10 रुपीज पर केजी व्हीट अवेलेबल था या राइस अवेलेबल थी, 5 साल बाद वो 10 kg नहीं होगा, या 2 साल बाद वो 10 रुपए केजी नहीं होगा, वो वैल्यू बढ़ जाएगी। राइट? कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमारी जो बेसिक ग्रोसरी है उसके प्राइसेस में तो डिफरेंस आपने देखा है। व्हाट इज दैट? दिस इज व्हाट इट शोज कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स करती है कि इतने तो सैलरी देंगे ना हम वर्कर को कि वो उसका मिनिमम सर्वाइवल पॉसिबल हो। अब वो मिनिमम वेजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ही बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि आपकी महंगाई तो कुछ और ही चरम पे है और आप उनको पुराने रेट्स पे ही सैलरी दे रहे हो, तो क्या ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वो नंबर है जो कंपिटेंट अथॉरिटी टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को समझकर, कंज्यूमर इंडेक्स को समझकर, कंज्यूमर कॉस्ट को समझकर आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, अब सेक्शन 2D डिफाइन करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। What is this? This is that ratio or that number in relation to the employees who are employed in the scheduled employment, respect to which the minimum rates are to be fixed, means index number a certain declared by competent authority. जो ये authority number declare करेगी वही number को हम कहेंगे cost living index number, cost of living index number. ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, the cost of living index number is taken into account in connection with which of the following act?
बहुत बार पूछा जाता है, तो हमारा है ये मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 2E डिफाइंस एम्प्लॉयर। हु इज एम्प्लॉयर, किसे हम एम्प्लॉयर कहेंगे और क्यों हम एम्प्लॉयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे? बिकॉज इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट ही इज एम्प्लॉइंग, अगर even if he is employing one person either directly or indirectly, चाहे आपने बीच में कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आए हो, चाहे खुद के अपने अंडर में हायर किया है, एक भी बंदा क्यों ना हो, it is your responsibility to make sure that you are giving them the minimum wages as per the law. So who is the employer? Any person who employs, whether directly or through any other person, or whether on the behalf of himself or any other person, one or more employees. ठीक है, एक से भी ज्यादा, एक या उससे ज्यादा, एक भी व्यक्ति आपने हायर कर रखा है तो आप एम्प्लॉयर हैं। तो अगर वो एक फैक्ट्री है, एज पर डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, अगर वो फैक्ट्री है, सो द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री वुड बी कॉल्ड एज एन एम्प्लॉयर। इफ इट इज अ इंडस्ट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इफ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, a person who is appointed for the supervision of establishment, either him or the person who is the head of department would be called as an employer. मतलब यहाँ पे इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेक श्योर करना कि मिनिमम वेजेस मिले। अगर वो लोकल अथॉरिटी है, लाइक हमारी ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, तो द पर्सन जिसके पास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सुपरविजन की उस इंडस्ट्री की, या वो जो सीईओ की पोजीशन पे है, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिमम वेजेस एश्योर करना। एम आई क्लियर? करेक्ट चंचल, इसलिए पे कमीशन आता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सेक्शन 2G स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है विच सेक्शन डिफाइंस द स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 2G, और सेक्शन 2G इज the employment specified in this schedule or any process or a branch of work forming a part of such employment. ठीक है, another important definition, wages. section 2H define wages. भैया हम तो पढ़ रहे हैं मिनिमम वेजेस, तो हमने क्या कहा कि ये जो वेजेस है ना, ये जो मिनिमम वेजेस है ना, ये वो वेजेस है जो आपको एम्प्लॉयज को देने हैं। इतने तो देने ही पड़ेंगे, इनसे आप पीछे हाथ नहीं हटा सकते, ये वेजेस तो आपको देने ही हैं। तो जब ये वेजेस देने हैं, एम्प्लॉयर को देने ही हैं, तो क्या हम केवल और केवल एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव चलाएंगे, सॉरी एम्प्लॉयज का पर्सपेक्टिव देखेंगे कि उसको फायदा होना चाहिए, एम्प्लॉयर की नहीं सोचेंगे? नहीं, इसे हार्मनी नहीं कहते। द लॉज आर नॉट ओनली टू हेल्प द एम्प्लॉयज, uplift them, but also to make sure that employers are not degraded, employers are not overburdened, our economy is not overburdened. So there has to be an harmony from employee and employer point of view. यानी आप मिनिमम वेजेस देंगे, एक लेवल तय करेंगे, बट मेक श्योर करेंगे ना कि वो एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन ना हो। आप अगर बोल रहे हो मिनिमम वेजेस तय कर दे रहे हो कि हर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए महीना देना ही है मिनिमम किसी भी कंडीशन में, तो शायद हर एक एम्प्लॉयर की ये कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, टेक्निकल होते हैं, क्लरिकल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करते हैं, मैनेजरल लेवल पे काम करते, तो ये डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं जिसकी अपनी अपनी डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है। तो क्या हम सभी को एक ही नापतोल पे नापेंगे? क्या हम सभी को एक तरीके का मिनिमम वेजेस डिसाइड कर देंगे? नहीं, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वेजेस डिसाइड होता है। तो जब हम मिनिमम वेजेस को डिसाइड करते हैं, उसमें इंक्लूड क्या करेंगे और उसमें इंक्लूड क्या नहीं करेंगे, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। अब इंक्लूड क्या करेंगे और इंक्लूड क्या नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि मैं एक एम्प्लॉयर हूं, लक्ष्मी एक कंपनी चलाती है या फिर एक इंडस्ट्री चलाती है। अब लक्ष्मी के पास में अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लक्ष्मी की जो इंडस्ट्रीज है,
उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल कर रही है मिनिमम वेजेस का। तो लक्ष्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग वहां काम कर रहे हैं, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस को फिक्स किया है वही देगी। तो जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करते हैं तो क्या करेगी वो, इन वेजेस के अंदर में मेरी कितनी रिस्पॉन्स, मैं क्या दूंगी, कितना एश्योर करूंगी, तो इसको भी समझेंगे। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ऑल रेमरेशन पेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। एक वर्कर को जो भी रेमरेशन पेबल है उसके काम के अगेंस्ट, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो या वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हो, उसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उसके काम के अगेंस्ट जो भी रेमरेशन है, जो भी बनता है, दैट which is capable of being expressed in money, whether the terms of the condition are implied or were fulfilled or expressed। मतलब लिखित है, verbal है, कुछ भी है, उस टाइम verbally भी हायर होता था। be payable to a person employed in respect to his employment or a work done in such employment, it includes HRA। तो यहां हमारा होता है बेसिक प्लस HRA, ये इंक्लूड, यानी मेरा जो मिनिमम वेजेस है वो बेसिक HRA। अब इसको हम समझेंगे। Which is not, what is not included: any house accommodation, supply of light of water, medical attendance, other amenity or services excluded by general or the special order of appropriate government, contribution paid by the employer to any pension fund or provident fund, traveling allowance, special expenses and gratuity, ये include नहीं है। मैं इसको ना आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैं इसको इसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, फिर इसके बाद आपको इन चीजों को इस क्लास के रेफरेंस से समझना पड़ेगा, बाकी लॉज के लॉज में भी, ठीक है। एक मिनट। हाँ, देखो क्या होता है, जो अगर आपने, you all must have seen the salary slip। have you seen the salary slip? या तो अपने डैड का, भाई का, किसी का भी देखा है? anyone have seen? नहीं देखा है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, हैव यू एवर सीन द सैलरी स्लिप, और हैव यू एवर सीन द अपॉइंटमेंट लेटर विच हैज द बाइफरकेशन, जिसके अंदर में सैलरी का बाइफरकेशन होता है। तो मैं ना एक सैलरी स्लिप, या लेट्स से मैं कंपोनेंट बना रही हूं, मैं ना आपको कंपोनेंट्स लिख के दे रही हूं ऑफ सैलरी। हर एम्प्लॉय के इसके अंदर में सैलरी होती है, जैसे मैं लेके चल रही हूँ 20,000 रुपए, एक एम्प्लॉय को पेमेंट मिल रही है 20,000 रुपए। तो क्या होता है ना, बेसिक होता है, HRA होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ठीक है। सर्विसेज के अंदर में आपका हाउस अकोमोडेशन, सर्विसेज के अंदर में, चलो LTA लिख देती हूँ मैं, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, फिर आती है आपकी ग्रेचुटी, ठीक है, ग्रेचुटी, फिर PF, कंपनी कार एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जब एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपए सैलरी दी जा रही है, इसका बेसिक तय किया जाता है। तो जो बेसिक तय होता है ना, बेसिक तय होता है, वो डिसाइड किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। यूजुअली यही प्रैक्टिस है, ठीक है। मेट्रो, नॉन मेट्रो, हम इसे ज्यादातर 45% या 40%, आई बिलीव सो, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, मैं इसी काम में थी, मैं यही करती थी, उस टाइम शायद हम 45% लेते थे। इट वॉज लॉन्ग बैक इन 2015 एंड ऑल, ठीक है, 2015 में मैं वहां पे थी। तो वहां पे जब मैं बेसिक किसी भी सैलरी, किसी पर्सन को जब मैं सैलरी ऑफर कर रही हूं, तो डिसाइड करना होता था मुझे कंपोनेंट के, किस कंपोनेंट में क्या होगा। तो बेसिक हम लोग लिखते थे 45% जो मैं सैलरी ऑफर कर रही हूँ। हाउस रेंट अलाउंस मेट्रो नॉन मेट्रो सिटीज के लिए 50% मेट्रो के लिए होता था, और 40% आई थिंक सो नॉन मेट्रो के लिए होता था। अगेन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कितना होता था। अब ये जो 50% होता था वो बेसिक का होता था, ठीक है। फिर मेडिकल अलाउंस जो होता था वो 15% ऑफ होल सैलरी होता था, बाकी जो डिवाइड होता बचता था वो इन सब में डिवाइड होता था। PF 12% कैलकुलेट करते थे, ग्रेचुटी
एज पर द ईयर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते थे। अब मैं आपको यहां समझाना चाह रही हूं कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो ये कहती है कि ये जो बेसिक और एचआरए है, ये बेसिक और एचआरए, ये है मिनिमम वेजेस। ये है मिनिमम वेजेस, यानी किसी भी वर्कर के लिए व्हाट इज इंक्लूडेड इनटू द वेजेस। मतलब ये नहीं कि आप इसको ये सैलरी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप एम्प्लॉइज के लिए कोई सैलरी तय कर रहे हैं, मिनिमम मिनिमम ये बेसिक और एचआरए उतना होना चाहिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेगी। ये तो फिर आपको देने हैं। आप 20,000 में से सरकार ने बोला कि लेट्स से गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड 8,000 रुपीज एज अ बेसिक। तो बेसिक में भैया ये 45% हटाओ। अब आपका सैलरी अगर इस लेवल पे है, लो लेवल पे है, आप बेसिक को 8,000 रखेंगे या 6,000 रख दो, 2,000 एचआर में डालेंगे। दिस मिनिमम वेजेस which include basic and HRA has to be 8,000 rupees, which is being fixed by the appropriate government. Rest you can divide here. The other than 8,000 you can divide here. But basic यानी minimum wages कहता है इतने तो दोगे भैया, 8,000 रुपए तो दोगे, यानी बेसिक और एचआरए ये सारे कंपोनेंट आपकी सैलरी में हो या ना हो, आपके सैलरी के अंदर बेसिक और एचआरए तो होना ही चाहिए। तो अगर आपने गौर फरमाया होगा, अगर किसी फैक्ट्री वर्कर को देखा होगा, उसके ज्यादातर सैलरी में 2-4 ही कंपोनेंट होते हैं, बेसिक होता है, एचआरए होता है, पीएफ होता है। देखा है क्या? नहीं देखा है तो आप देखेंगे जाके। समझ में आया स्टूडेंट्स? एम आई क्लियर? आई ट्राइड टू मेड इट वेरी वेरी सिंपल, इस लेवल पे जाके समझाने के लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है? जो रियलिटी के अंदर में कैलकुलेशन होता होगा वो थोड़ा सा इससे वैरी करता होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपने नॉलेज के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। द वे वी यूज टू कैलकुलेट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसमें भी डिफरेंस था, ठीक है? वहां हम परसेंटेज लेके चलते थे, ठीक है? हर एक चीज का परसेंटेज फिक्स्ड होता था। लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये इंक्लूडेड वाले पार्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। एम आई क्लियर? एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल और एचआरए में क्या फर्क होता है? हाउस रेंट अलाउंस अब क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है, या हमारा जो आईएलसी, एसएलसी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी, और एक कमेटी बनी थी फेयर वेज कमेटी, ठीक है? फेयर वेज कमेटी बनाई गई थी आईएलसी के ही 15th सेशन में। इस कमेटी ने डिफाइन किया गया था, और इसके अलावा नीड बेस्ड वेजेस भी थे, डिफाइन किए गए थे आईएलसी के द्वारा। नीड बेस्ड वेजेस यानी किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी होनी चाहिए, वेजेस होनी चाहिए, वो नीड बेस्ड होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये नीड फुलफिल होनी चाहिए, और उसी के अंदर में हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत को पूरा करते हुए, मकान की जरूरत को पूरा करते हुए हाउस रेंट अलाउंस और अकोमोडेशन की बात होती है। हाउस रेंट अलाउंस ये कहता है कि आपकी जो नीड बेस्ड, जो रोटी, कपड़ा, मकान की बात कर रहा है, कि आपको अपने एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी के अंदर इतना हिस्सा देना है कि वो घर का खर्चा उठा सके, ठीक है? इसलिए हम हाउस रेंट अलाउंस देते। हाउस अकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट एंड वाटर, मेडिकल अटेंडेंस क्या है कि अगर सी व्हेन आई वाज छोटी थी मैं, माय फादर वाज अ वर्कर, ही वाज वर्किंग विथ वोल्टास रेफ्रिजरेटर प्लांट, so my father was working there as a worker. We were living in the quarters which were provided by this company, ठीक है? And the company provided us this house accommodation, plus we had proper light supply, 24 hours light, we had proper medical, even we had a dispensary facilities, we had water, 24 hours water facilities, we have transport facilities and everything. So this was something which was provided by the company, but there were the deductions made for the same by my father's salary. There were some deductions, minimum deductions which were made, but there were the workers whom this quarters were not available. जरूरी नहीं है ना कि कंपनी इतनी बड़ी हाउसिंग फैसिलिटी बना दे कि 1,000 लोग अकोमोडेट कर पाए, नहीं होता है। सो फॉर देम
इट हैज अ कंपोनेंट कॉल्ड एज हाउस रेंट अलाउंस, यानी वो वर्कर जिनको क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है, वो रेंट पे रहते थे, तो वो वहां पे जो रेंट देते थे ना, जो वहां पे उस घर का रेंट होता था, वो इस बेसिक वेज का पार्ट होता था। ठीक है, यानी आपका रेंट आपकी सैलरी में अभी भी सैलरी का हिस्सा होता है। एचआरए में मैं किराए पे रहता हूं, मेरा 20,000 का सैलरी, कोई बात नहीं, आप प्रूफ दिखा दो, आप किराए पे रहते हो, एग्रीमेंट दिखा दो, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, आपको उसको सैलरी में मिल जाएगा। दैट इज व्हाट द हाउस रेंट अलाउंसेस, घर रेंट का अलाउंस दिया जा रहा है। सो अकोमोडेशन अगर आप दे रहे हो तो रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो एनी हाउस रेंट एकोमोडेशन, एनी अदर एम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट था हमारे पास में, वो बस फैसिलिटीज थी, उसका भी कुछ वैल्यू कटता था, और या फिर कोई और सर्विसेज जो गवर्नमेंट एक्सक्लूड करती है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस इज नॉट इंक्लूडेड, स्पेशल एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड, ग्रेचुटी नॉट इंक्लूडेड। तो मतलब ये सिंपल सा है कि जब सरकार मिनिमम वेजेस, व्हेन इट इज फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस, वो सिंपल और सिंपल बेसिक प्लस एचआरए को कंसीडर करके मिनिमम वेजेस तय करेगी, और फिर एम्प्लॉयर उन वो सैलरी देगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए इजी है, अब तो इतना तो दे ही सकती है ना। तो वही हार्मनी वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे मिनिमम वेजेस तय किए जाते हैं कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में भी हो। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? डिड आई गो वेरी डिटेल्ड? डिड आई बोर यू? मुझे बता देना अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है, यू शुड लेट मी नो। एंड इफ दिस डिटेल इज इनफ, is good enough, you can tell me that I should continue with that. इसी सेशन में, इसी मिनिमम वेजेस के अंदर में मैं आपको इतना डिटेल पढ़ा रही हूं, इसके बाद में मैं आपको इतना डिटेल वेजेस की डेफिनेशंस को नहीं पढ़ाऊंगी। एंड दिस इज फॉर द पर्पस कि आप जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना डिटेल में लॉ को कोई नहीं समझाएगा, एक बात याद रखेंगे, ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया। कहीं पे अगर कोई भी मिस्टेक होती है आप मुझे करेक्ट करेंगे, मुझे बताएंगे, ठीक है, बाकी रेस्ट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द टाइम, विल कंटिन्यू दिस इन टुमारोज क्लास। क्लियर? थैंक यू सो मच, वी वुड बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी हमारा दूसरा सेशन है। थैंक यू। यस, रोहिणी, टेल मी, यू हैव एनी क्वेरी? Hello. या रोहिणी? Hi, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाउ इज योर किड? Yeah, he's fine. He's in my arms only. So just trying to focus also. Ma'am, actually आपको पता है मैं काफी टाइम से खरीद रही हूँ, है ना, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा है मेरा एग्जाम। मैम, और मतलब ये भी पूछना देखो, मैं था एक बात कि बताऊं, कोर्स हाँ ले लेने से या पीडीएफ लेने से, ठीक है, ये बहुत हाँ है, लोग ले लेते हैं, मेरे पीडीएफ्स मार्केट में बहुत कम दामों पे लोग बेच रहे हैं, ठीक है, यस लेकिन एक मैम, बात यस, बताऊं, पीडीएफ को, केवल पीडीएफ को ले लेने से या पढ़ हाँ, लेने से चीजें क्लियर नहीं होगी। अभी आपको यस क्लियर मैम, में आया होगा, क्लास में मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ, हाँ क्या हाँ और हाँ हाँ। पीडीएफ में लिखा है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं है? नहीं 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 मैम, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या पीडीएफ में बिल्कुल। जो लिखा गया है और जो मैंने डिटेल्ड या इंटरप्रिटेशन या कंसेप्चुअलिटी आपको समझाई है, क्या वो पीडीएफ पढ़ने से समझ में आ जाएगी? नहीं नो मैम, नॉट एट ऑल, यस मैम। है। इसलिए क्लासेस का अटेंड करना बहुत हाँ, जरूरी है। अब यस कुछ मैम। स्टूडेंट्स इस पर्सपेक्टिव में भी होंगे, मैम ये तो अननेसेसरी, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बिल्कुल सही बात है, हम्म, नहीं पूछेगा कोई हम्म, स्ट्रक्चर, लेकिन जो हम्म, पूछा जा रहा है उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है।
यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया है कि मैं आपकी क्लासेस जो अटेंड कर रही थी ना, मैं ना मतलब टाइम नहीं निकाल के उसको मैं लाइव नहीं अटेंड कर रही थी, तो जो मेरे डाउट्स होते थे ना वो अपने पूछ ही नहीं पास पा ही रही रखे थी। रहते थे। हाँ, हाँ हाँ, पूछ नहीं पा रही थी। अब फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स मैं एक्चुअली अभी तक दिल्ली में इन लॉज के साथ रहती थी, तो अब ना मेरे हस्बैंड ने चंडीगढ़ में ज्वाइन करा है, तो राइट नाउ आई एम इन चंडीगढ़ ओनली। तो अब मैं ये पूरा प्रॉपरली इसको लाइव अटेंड करके ही आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी। और मैम साथ के साथ जो आप कहते थे ना कि मतलब सॉरी पीवाई क्यूज, तो हम्म। ये इसको मैम मैंने थोड़ा देखा, कोई देखो बुक कोई नहीं, खरीदनी है? नहीं, हाँ जब आप हाँ, मुझे फॉलो कर रहे हैं आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है। इनके बीच में ठीक ये है देखिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ठीक है ठीक है ये ठीक है क्वेश्चंस ठीक है। है। ये पीडीएफ ओके, के अंदर में ही मैंने जो बीच बीच में क्वेश्चंस डाले हैं ये पीवाई क्यू है। आपको अलग से ठीक है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निश्चिंत अच्छा रहिए, अच्छा, पीवाई क्यूज एमसीक्यूज सभी कवर हो रहे हैं। और जिस ठीक है लेवल ठीक पे है मैं एमसीक्यूज आपको करवा रही हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड है। चाहे वो कोल ठीक है। इंडिया के लिए हो, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए हो, चाहे वो जून के यूजीसी नेट के लिए हो, या किसी एग्जाम के लिए हो, वो हाँ उसी हाँ हाँ, प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। पीवाईक्यूज तो मैं ठीक है कराती हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके। PYQ आपका मिस नहीं होगा। आप इन हम्म। पीडीएफ में देखिए, क्वेश्चन है, आंसर है, उसी ठीक है, टॉपिक के यस बाद, मैम। बिल्कुल टॉपिक के बाद में क्वेश्चन है, आंसर है, ताकि पता हो हम्म। कि उस टॉपिक से रिलेटेड देखें। और यहाँ पे हम्म। एकदम रीसेंट, यानी केवल और केवल मैंने शायद 2024 या 23 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर अभी ऐड नहीं किया है। बाकी अच्छा, सारे 22 तक और जून 23 तक के क्वेश्चंस एडेड हैं इन पीडीएफ में। तो आपको ठीक है अलग ठीक से है। उसको मैम पीडीएफ की बुक लेनी पड़े, सॉरी, पीवाईक्यूज की बुक लेनी है क्या, कौन सी बुक रेफर करना है, एमसीक्यूज। हाँ हाँ, आप मेरे कोर्स में आ गए हैं, आपको ना ही कोई बुक रेफर करनी है, ना ही कोई पीडीएफ लेनी है, सॉरी पीवाईक्यूज की बुक रेफर करनी है, हाँ बिकॉज हाँ। आई एम टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक का मतलब है जो एग्जाम हो रहा है वही पीवाई बताए जा रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो नोट्स बनाए गए, हम्म। अब आती है बुक्स, क्या मैम कोई बुक्स रेफर करनी है, जैसे रॉबिन्स हो गई ओबी के हाँ लिए, हाँ 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 हाँ। हो गई। देखिए मेरे हम्म जो नोट्स बने हैं ये मल्टीपल बुक्स को लेके, मल्टीपल हम्म। रिसर्च पेपर्स को रिलेटेड लेकर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को लेकर एनालाइज करके मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको ना ओके। ही कोई बुक रेफर करनी है, ना ही कोई पीवाईक्यूज। हाँ, अगर कोई चीज रह रही है और आपको लग रहा है मैम आपने ये मिस कर दिया, तो जरूर बताएंगे आप। हाँ, बट ठीक है ठीक है ठीक है। वो ओके। सारी चीजें, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें कवर करी हैं। ऐसे भी टॉपिक हम्म। जो मैंने पहले पढ़ा दी है और एग्जाम में बाद में आई है, ये आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तो खुद ही समझ में आएगा। मेरे कहने से यस नहीं यस। समझ में आएगा, ये आपको खुद ही समझ में आएगा। मेरा हाँ जी पर्पस हाँ जी। है आपको क्वालिटी देना। पहली चीज ओके तो मैम। ओवर बर्डन नहीं करना है खुद को मैम ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, नहीं। एक पीडीएफ ठीक है। मिनिमम जिसकी है, अगर मेरी नोट्स बल्कि हैं, इसका रीजन यही है कि देखो ना, आप पीडीएफ के अंदर में मेरे दो दो स्लाइड्स तो ऐसे हो जा रहे हैं ना क्वेश्चंस के, सही बात है, ऑब्वियसली, यस मैम। इसका हम्म। पिक्चर तो बढ़ेगा ही, बल्कि तो होगा ही ये, राइट। यस मैम, यस मैम, मैं यस आपको मैम। ऐसे पोर्शन में या पार्ट्स में अलग अलग नहीं दे रही हूँ, मैं पूरा एक ही दे रही हूँ, तो थोड़ा बल्कि होता है। अगेन मार्केट हम्म में है कि लक्ष्मी मैम के नोट्स बल्कि हैं, इसलिए बल्कि, उसमें सब यस कुछ है, मैम। बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आज हर एक साइकिल के लिए मैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज अलग करती हूँ। मेरे मेरी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है कुछ चीज पुराने वाले क्वेश्चंस को ही उठा के, 10 साल पुराने या 5 साल पुराने आपको उठा के दे देना। न्यू ठीक है ठीक है। एक्सपेक्टेड सीरीज होते हैं जो एज पर एग्जाम एनालिसिस करके मैं बनाती हूँ, और ये खुद ही आप ऑब्जर्व हम्म। करेंगे। पिछले यस मैम, साइकिल यस मैम। के इस साइकिल के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज उठाएंगे, टोटली। बस ओके आपको मैम। क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीपल रिवीजन। ठीक है। ही आप मल्टीपल रिविजन्स पूरे करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर होंगे। डाउट्स क्लास खत्म होने के बाद में, जैसे आपने आज, आप ही नहीं बाकी स्टूडेंट्स एंड होने के बाद में कॉल यस कर, मैम। मैसेज करके, एनीवे ठीक है ठीक है ठीक है। बता डन दें। मैम। सॉरी।
Any other question? Any other query? नो नो, नहीं 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 मैम, अभी अभी मैं इसी पे ही हूँ। जब जब जैसे होगा आई जस्ट कीप इट टू यू कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बताइए मुझे। मुझे लाइव में क्लासेस में पूछ लें या फॉर स्टूडेंट्स उनकी फैसिलिटीज के लिए हम एक पर्टिकुलरली एक अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन भी लिया करेंगे, बट ठीक डिपेंड है करता ठीक है। है स्टूडेंट्स लाइव आते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को हैबिट है ये करने की, रिकॉर्डेड सेशन करने की, बट आई वांट माय स्टूडेंट टू डू इट लाइव ताकि क्वेश्चंस लाइव। पूछो तो मुझे यस मैम। मैं तो इसी अजम्पशन में रहूंगी, रिज्यूम करती रहूंगी कि सब समझ में आ रहा है, राइट? ओके। तब ठीक है मैम। ठीक है। थैंक ऑल यू। राइट मैम। अच्छा मैम, एक और चीज, क्या कहते हैं ये, जो पेपर वन है उसके लिए कोई क्लासेस नहीं आ रही हैं क्या इसी ऐप पे, पढ़ाई पे ही? आई एम स्टार्टिंग डीआई यूट्यूब हाँ पे। हाँ। प्रॉपर अभी मेरा कोर्स नहीं है पेपर वन का, ठीक है? अच्छा अच्छा। मैं वर्क कर रही हूँ, जैसे चीजें कंप्लीट होती हैं मैं पेपर वन का कोर्स लेके आऊंगी, लेकिन फॉर अच्छा। आई वुड सजेस्ट आप केवीएस मदान का बुक रेफर कर सकते हैं ठीक है इस ठीक है मोड। ठीक है। मैम ठीक मैं है, अनअकैडमी का नहीं खरीद रही फिर पेपर वन के लिए, मैं सिर्फ बुक से ही पढ़ूंगी फिर, ठीक है ना? कर सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रही आप नहीं खरीदो, जो आपको हाँ एडुकेटर्स सही लगते हैं आप उनको हाँ। रेफर कर सकते हैं। रैदर मेरा मानना हम्म। है अगर आप केवीएस मदान की बुक पढ़ते हैं दैट इज हाँ मोर हाँ। गुड। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट अपडेटेड मैम। चीजें बस मेक श्योर करेंगे कि एग्जाम के हिसाब से और कौन सी चीजें अपडेट हो रही है और उनको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। मैम आपकी ये पढ़ाई वाली ऐप आईओएस पे नहीं चलती है ना? हाँ हाँ, चलती है, उसकी अलग सेटिंग है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप आईओएस पे भी ठीक डाउन। है। ऑल राइट। और मैम एक बार वो पीडीएफ डाउनलोड कैसे कर रही है उसका भी प्रोसेस फोल्डर एक में बार बता दीजिए। फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर है, ठीक है? हाँ हाँ। फोल्डर में जाएंगे तो वहां पे जितनी भी पीडीएफ है वहां ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से फ्रॉम आवर साइड एवरी परमिशन ऑफ डाउनलोडिंग द पीडीएफ इज देयर, देयर इज ओके। समथिंग योर मोबाइल या सेटिंग्स में, या तो आप हाँ वेब हाँ। पेज पे जाके डाउनलोड कर लो www.padhai.com, ठीक है? ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, ओके मैम। डाउनलोड कर लो, नहीं होता है देन टेल मी, हम टेक्निकली चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है डन मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, बाय। चलो ओके, वी हैव अनदर क्लास। या थैंक यू।